اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم جناب تحصیلدار صاحب، ان کے ساتھ باقی جو بھی ہمارے محکمے مال کے آفیسران یا جو بھی آئے ہیں، محترم شیر محمد صاحب، محترم رشید صاحب اور میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج 15 نومبر ہے اور 15 نومبر کو نیشنل ٹرائبل پرائیڈ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، یعنی اردو میں اس کو اگر ہم کہیں تو یوم فخر قبائل، یعنی اس کا مطلب ہے ہم کو اپنا قبیلہ جو ہے اس پہ فخر ہونا چاہیے، ہم کو اپنی زبان پہ فخر ہونا چاہیے۔ یہ دن اسی لیے منا جاتا ہے کہ تاکہ ہمیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کوئی سیکنڈ گریڈ آدمی ہیں، جیسے مین سٹریم کے لوگ ہیں ایسے ہم بھی ہیں۔ فرق اتنا ہی ہے کہ ہمارا جو قبیلہ ہے یہ پچھڑا ہوا ہے، اکنامکلی اور پولیٹیکلی ہمیں ہمارے حقوق جو ہمیں نہیں ملتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ باقی وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمیں یہ دن منانا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ یہ ایک میسیج جائے لوگوں میں کہ ہم اپنی جو ہماری مادری زبان ہے، پہاڑی زبان ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا ہوگا، فخر ہے۔ اور جو کہ ہمارے لوگ آج کل شائنس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، وہ شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، فخر سے بولنا چاہیے ہم پہاڑی ہیں۔ یہ دن اسی لیے منایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے اس جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا پہاڑی کلچر ہے، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو اس موقع کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی بات بھی رکھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے۔ ہم اپنی بات گورنمنٹ تک اسی سٹیج سے پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم جو ڈسٹرکٹ اننت ناگ ہے، خاص کر ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے جو لوگ پہاڑی لوگ ہیں، ان کو بہت ہی استحصال ہوا ہے آج تک، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے آگے ہم پہ وہ یہ استحصال نہ ہو۔ وہ استحصال کیا ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں ہماری پاپولیشن 1 لاکھ کے قریب ہے۔ پہاڑی کلچر ویلفیئر فورم کی طرف سے جو ہم نے سینسس کرایا ہوا ہے، تو ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں 1,60,000 لوگوں کی پاپولیشن ہے پہاڑیوں کی۔ نمبر 1 جو ہے یہاں پاپولیشن جو ڈسٹرکٹ وہ ہے کشمیری، اس میں کوئی دھاؤ رائے نہیں ہے، لیکن دوسرے نمبر پر ہمارا پہاڑی ہے یہاں، اور تیسرے محسوس ہے کہ ان کو ملا، لیکن ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے گجر اور بکروال اور ہم پہاڑی بائی ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر گورنمنٹ ایک آدمی کو بریانی کھلا رہی ہے، ایک بھائی کو، دوسرے کو سوکھی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے، یہ جو ہمارے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری پاپولیشن گجر بکروال سے زیادہ ہے، ان کو ہر ایوان میں، ہر جگہ جہاں جاؤ، کیبنٹ منسٹر بھی گجر بکروال ڈسٹرکٹ کے نام بنتے ہیں، یہاں کے MLC بھی بنے ہیں، یہاں کے وائس چیئرمین بھی بنے ہیں کہ پہاڑی اپنا گجر بکروال کا جو بورڈ ہے اس میں وہاں بھی نمائندگی ہے، اور پولیٹیکلی وہ وہاں جو آج تک نئی ریزرویشن نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے جہاں ان کی اکثریت تھی وہاں سے ان کے نمائندے چن کر جاتے تھے، اور وہاں گورنمنٹ بھی جو اپنے گورنمنٹ میں بھی ان کو اپنا حصہ ملتا تھا۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں اس کی خدا نہ خاصا ہمیں یہ غم نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، ہم خوش ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمیں کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ڈسٹرکٹ اننت ناگ کو کیوں اس میں MLC لیجسلیچر کونسل میں یہاں کا نمائندہ کیوں نہیں جاتا، جب یہاں کی پاپولیشن اس وقت 1,60,000 ہے؟
हमें यहाँ वाइस चेयरमैन इस इलाके से क्यों नहीं मिलता यहाँ का? अगर टर्न के हिसाब से कर दो, उड़ी का बनता है, पुंछ का बनता है, बाकी लोगों को बनते हैं ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं प्रोपोर्शनेटली बनना चाहिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का जो कि हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। आज तक जो हुआ सो हुआ, वो हो गया, लेकिन इससे आगे हमें हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से भी, यहाँ की जो गवर्नमेंट इंतजामिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका हमारा ये मुतालबा है कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग अभी जो पॉलिटिकल जो डिलिमिटेशन कमिश्नर की होगा, हमने वहाँ अपनी रिप्रेजेंटेटिव रखी है, हमने वहाँ ये अपनी बात रखी है, लेकिन अब जब रिजर्वेशन होने जाएंगी सीटें जो हमारी पहाड़ी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली जाती है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का खास ख्याल रखा जाए, हमें वहाँ भी अपनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो ये था हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा। अब मेरा मुतालबा आप लोगों से भी है कि आप अपना जो कल्चर है वो उसको फिर दोबारा जिंदा करो। ये आपने पता नहीं क्यों आप ये समझते हो कि हमारा जो ये पहाड़ी लोग हैं कोई किसी से कमतर है, नहीं, हमें फख्र होना चाहिए, हम पहाड़ी हैं। हम अपने घरों में भी ये करो, पहाड़ी बोलो, और बच्चों को भी अपने उर्दू मत सिखाओ, बाकी चीजें पढ़ाओ। मैं स्कूल जो आपकी जो रवायती तालीम है उसके मैं एतराज नहीं करता, वो पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ स्कूल में, वो भी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को घर में जो आप ये उर्दू कम्युनिकेट करते हो बच्चों के साथ, जो आपको कश्मीरी में बात करते हो, ये बातें छोड़ दो। इससे आप अपना ये कहते हो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम लोगों में कि हम ये बातें करते हैं, इन बातों को छोड़ दो, अपना रिवाइव करो। मैं इधर जो भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, क्या ये हमारा ये पग है, ये हमारा रिवायती लिबास है, किसी ने नहीं लगाया। मैंने यहाँ के इसको आपने शेर मोहम्मद साहब को, बाकी जो बुजुर्ग यहाँ थे, इनको मैंने कहा था कम से कम अगर ये 1000 आदमी आपका आता है, 1000 नहीं 500 होना चाहिए, 500 भी जितना भी है, और पग लगा के आना चाहिए। इनका ये कहना था कि यहाँ में पग लगाते ही नहीं है। तो ये चीज मुझे बताओ, क्या ये मुझे बताना पड़ेगा हमारा रिवायती लिबास भी क्या है? हमारा रिवायती लिबास भी हमें पता नहीं, भूल गए हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है हमारा रिवायती लिबास क्या है, हमारा जो है ये हमारा जो है ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा ये है कल्चर है, एथनिक कल्चर है हमारा, एथनिक ये कल्चर हमारा अलग है, लिंग्विस्टिक जुबान हमारी अलग है। इन चीजों को हम सब भुला बैठे हो। हमने अपनी जुबान को भी तर्क कर दिया, अपने कल्चर को छोड़ दिया। हम कोट पैंट में चलते हैं, हम अंग्रेज नहीं बन सकते। अपनी वो कहता है ना, पता नहीं किसी कौवा चला हंस की चाल अपना भी भूल गया। ये दूसरों की चाल मत चलो, अपनी जुबान को इसको रिवाइव करो, इसको दोबारा जिंदा करो, इसके फख्र करो। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं गुजारिश अब मेरी ये है कि अब मैं जनाब तहसीलदार साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस मौके पर हमारे यहाँ दरमियान आके अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजे। जनाब तहसीलदार साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनका बहुत बड़कपन है कि इतना इनकी दो बातें रखने से पहले मैं ये बात मैं अल्लाह की कसम, देखो अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, मगर इंशाअल्लाह रहमान अभी नमाज पढ़ूंगा। मैं ये दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ कि ऐसा ऑफिसर मेरे एक टेलीफोन पे हम गरीबों में आ गया, ये इसका बड़कपन है। मैं इसका मशहूर रहूँगा और ये बात में हर ऐवान में जहाँ जहाँ मेरी पहुँच है, ये बात इंशाअल्लाह वहाँ दोहराई जाएगी। ये इनके कदम जो यहाँ पहुँचे, ये जो यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ लाए, इस बात को मैं इंशाअल्लाह रहमान ऐवानों तक पहुँचाऊँगा कि ऐसे ऑफिसर हमारे होने चाहिए। इनका हम हमेशा मसरूफ, ऐसे ऑफिसर साहिबान का के लिए एक बार जोरदार तालियां मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी जनाब तहसीलदार साहब। काबिल एहतराम प्रेसिडेंट ट्राइबल वेलफेयर शरीफ साहब, इस गांव के बुजुर्ग जो यहाँ पे आज तशरीफ लाए हैं, नौजवान और बाकी साथी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप सबने अभी तक सुना ही, मैं तहसीलदार तोकर नाम हूँ। मैंने इसी मंथ यहाँ पे ज्वाइन किया है और जब मुझे सुबह फ़ोन आया कि 1 बजे यहाँ पे ऐसे मीटिंग है, तो उस बिना किस दोबारा कोई बात सोचे मैंने इनसे कहा कि मैं आ जाऊँगा। उसका मकसद यही था कि मैं जो आम लोग हैं यहाँ के उनसे तारुफ हो जाए, उनकी बातें सुने, उनको मैं अपनी बातें बताऊँ, क्योंकि सब लोग दफ्तर तक नहीं आ पाते हैं और हमारे लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि
ہر ایک جگہ پہ الگ الگ ہر دن ہم پروگرام کریں. جب اب وہاں کے لوگ بھی پروگرام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک آسان رستہ بن جاتا ہے ان لوگوں سے ملنے کا. ابھی تک یہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کے مسائل سنے کہ پہاڑی لوگوں کو ابھی ریپرزنٹیشن زیادہ نہیں ہے یا باقی چیز نہیں ہے, اس کا کیا پروسیس چل رہا ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ یہ تو میری طرف سے نہیں ہوگا. یہ سینٹرل گورنمنٹ ریزرویشن دے گی یا یوٹی گورنمنٹ دے گی, کون دے گی؟ فی الحال 4% ریزرویشن جو پہاڑی لوگوں کو ہے وہ ان کو ملی ہے. بٹ میں آپ سے کچھ ایسے مسائل کہنا چاہتا ہوں جو کم طور پر اکثر ایسے مجلسوں میں بتائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 4% ریزرویشن آپ لوگوں کو ملی ہے, مگر پہلے میں آپ سے بولوں گا کہ اس 4% ریزرویشن کا آپ کرو گے کیا جب تک آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناؤ گے کہ اس 4% کا فائدہ ہو. ہم آپ کو 4% لکھ کے دیں گے کہ پہاڑی اسپیکنگ پیپل ہے. سیٹرڈے کو 20 نومبر کو ہمارا بورڈ یہاں پہ بیٹھے گا, وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا. ہمارے آفس میں کل 200 سرٹیفکیٹس پینڈنگ ہے. انشاءاللہ اسی مہینے وہ سب ہم برخاست کر دیں گے, سب کو سرٹیفکیٹس مل جائیں گے. ہمارے آفس میں پینڈنسی کسی چیز کی نہیں رہے گی. بس کہنا 15 نومبر کو کیوں رکھا گیا ہے ٹرائبل ڈے, کوئی بتا سکتا ہے؟ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, کسی نے دیکھا؟ بتا سکتا ہے کوئی کیوں ہے 15 نومبر ہی کیوں ہے؟ یہ 15 اکتوبر, 15 ستمبر, 15 جنوری کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہی نہیں. آپ لوگوں کو اپنے بارے میں نہیں پتا, آپ لوگ مجھے کیا بولو گے اپنے بارے میں؟ 15 نومبر کو اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ جیسے آپ لوگ یہاں پہ اننت ناگ میں ٹرائبل پہاڑی لوگ, اسی طرح سے ہندوستان میں بھی ایک ہوا کرتا تھا, اس کا نام تھا برسا منڈا. تو اس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی, تو اس نے جو وہ لڑائی لڑی تھی اس کو یاد کرنے کے لیے آج کا دن مقرر کیا گیا. اب میں آپ کو لڑائی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی لڑائیاں کرو. کہنا مجھے آپ کو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کبھی اتنا زیادہ ہمیں لگتا نہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے, مگر اس ٹائم پہ ایک پہاڑی انسان نے اپنے ہاتھ میں یہ سارا جو ذمہ داری ہے یہ اٹھائی, اور ہندوستان آج تک 100 سال ہو گئے وہ اس چیز کو یاد کرتا. مگر کب؟ جب اس کو اپنی زندگی کا مقصد پتا کہ اس کو کرنا کیا ہے. ہمارے یہاں اکثر ایک پریشانی یہ ہے کہ میرا باپ اگر کوئی کام کرتا تھا مجھے لگتا ہے مجھے بھی وہی کرنا ہے, پھر میرے بچے بھی وہی کریں گے, تو یہ ایسے ہی کارخانہ چلتا رہتا. مگر آج کے دور میں جب تک آپ لوگ پڑھیں گے نہیں تو ریزرویشن بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہاں پہ اگر کسی کا باپ مزدوری کرتا ہے, کچھ پریشانیاں پیش آتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا اس کو بھی اپنی زندگی میں یا اس کی بیٹی اس کو بھی اپنی زندگی میں یہی پریشانی دیکھنی پڑے گی. ابھی یہاں پہ میں گن رہا تھا لگ بھگ 30 سے 40 لڑکے یا مرد ہیں یہاں پہ بچوں کو چھوڑ کر. عورتیں کتنی ہیں؟ 5-6 عورتیں. یہ ہمارے اندر دوسری پریشانی ہے. جب میں چاہوں گا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اچھی زندگی گزارے, تو اپنی بیوی کے لیے یا کسی کی بیوی کے لیے یا کسی کی بہن کے لیے ہم ایسا نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں وہ ابھی چولہے پہ ہی مرے پوری زندگی, اس کو ادھر کیا کرنا ہے. جب تک آپ اس کو بھی نہیں پڑھاؤ گے یہاں پہ حالات نہیں بدلیں گے, کیونکہ جیسا کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ اگر آپ گھر میں اپنی عورت کو پڑھاؤ گے اس سے آپ اپنا پورا گھر جو ہے وہ سنبھالتے ہو. آپ ایک مرد کو پڑھاؤ گے وہ سے مرد پڑھے گا, بٹ اب کیونکہ بچوں کی تربیت کس سے ہوتی ہے؟ عورتوں سے ہی ہوتی ہے. زیادہ اکثر وقت وہ عورتوں کے ساتھ ہی گزارتے ہیں. تو جب تک آپ ان کو نہیں پڑھاؤ گے, ان کو آگے بڑھنے نہیں دو گے, یہ ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. ہمیں لگتا ہے اب اس سے کیا ہوگی تو بولنے میں آتا ہے, یہ بولنے میں نہیں آتا ہے. آپ اپنی تواریخ دیکھو ابھی تک, جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ MLC آیا تھا, یہ MLA آیا تھا, ہمارے دماغ میں بھی یہ کبھی نہیں آیا ہوگی کوئی عورت کبھی کیوں نہیں بن پائی آپ لوگوں میں سے, کیونکہ ہمیں لگتا ہی نہیں یہ چیزیں ضروری ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ نوجوان سے خاص طور سے یہ آج کا جو دور ہے اس میں آپ 4% ریزرویشن لے بھی لوگے, یہاں پھر کشمیر میں لوگے, JNK میں لوگے, بٹ نیشنل لیول میں کیا کرو گے آپ لوگ؟ وہاں پہ تو ایسی کوئی ریزرویشن نہیں ہے. میرے جو والد صاحب ہیں وہ تو تحصیلدار نہیں تھے یا وہ تو DC نہیں تھے, بٹ میں نے سوچا, میں نے اپنے اوپر یہ ٹھانا کہ مجھے کرنا ہے تو میں نے کیا. باقی اللہ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا کرنا بھی ہوتا ہے. مگر جب پہلے آپ لوگ سوچو گے, جب تک آپ اپنے اوپر یہ ذمہ داری اٹھاؤ گے کہ مجھے بھی اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے, تبھی آپ لوگ کچھ کر پاؤ گے. اور جب تک آپ کو خود نہیں پتا ہوگی کہ آپ کے گاؤں کی کیا ضرورت ہے, پہاڑی لوگوں کو کیا پریشانی ہے, آپ لوگ آگے بھی یہ بات نہیں پہنچا پاؤ گے. یہ آپ لوگوں کے بزرگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اس کا ایک یوتھ ونگ بھی ہونا چاہیے تھا. یوتھ ونگ آج کا جو ہے وہ فون یوز کرتے ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, وہ اپنی بات جو ہے ای میل کے تھرو یا لیٹرز کے تھرو وہ کافی جگہ پہنچا سکتے ہیں. مگر ہمیں کیا ہے کہ 4 لوگ ہم نے آگے رکھے, وہ پوری زندگی اسی میں گزاریں گے, باقی لوگوں کو کچھ کرنا ہو نہ ہو وہ ان کی کوئی چٹی نہیں ہے.
इनका भी आप लोग साथ दीजिए, इनके साथ आगे बढ़े। ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, कल को आप लोगों के भी बच्चे होंगे, वो भी ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलता है। और बार बार मैं आपसे यही बात कहूंगा कि बिना पढ़ाई किए, बिना इल्म हासिल किए जिंदगी में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। और खास तौर से इस बात में ज्यादा जोर दूंगा कि आप, हमारी जो बेटियां हैं या बहनें हैं, जो माएँ हैं, उनको भी पढ़ने से पीछे मत रखें। उनको आप लोग पढ़ाएंगे, पूरा घर उससे आबाद हो जाएगा। खुद भी पढ़े, उनको भी पढ़ने का मौका आगे दे। देखिए, अगर आप तवारीख में देखेंगे, बहुत बड़े लोग जो इस दुनिया में आए हैं वो पैदाइशी बड़े लोग नहीं थे। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बना था अब्राहम लिंकन, वो किसके नीचे पढ़ता था? जो सड़क पे ये बल्ब नहीं लगे होते, वो उसके नीचे पढ़ता था। कि वो भी अगर सोचता मेरा बाप मजदूरी करता है, अब मेरे को घर में बल्ब नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये आप सबको पता है। जब आप लोग ठानोगे अपनी जगह पे, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। तभी एक घर में बदलाव आएगा, 2 घर में बदलाव आएगा, पूरी रियासत या पूरी जगह, पूरा गांव जो है उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। बाकी आप लोगों की क्या मसाइल है जो हम तक होंगे, तहसील ऑफिस तक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं यहाँ पे आ गया तो बस रातों रात यहाँ सारा तब्दील हो जाएगा। हमारे कॉम्पिटेंस में, हमारे ऑफिस के पास जो ताकत होगी, जिस हद तक हम जा सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पीछे रुकेंगे, मगर उसके लिए आप लोगों को भी आगे आना है, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। पहले खुद अपने आप को जाने, पहले खुद अपने आप को एम्पावर करें, खुद पढ़ें, तभी जाके आप लोगों के हालात को बदल सकते हैं। शुक्रिया तहसीलदार साहब आपके सामने ये बात रख रहे थे। हमारे कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, तो लिहाजा में चूँकि ये मोहतरम तहसीलदार साहब का जो अपने दस्तूर के हिसाब से लास्ट में होता था, लेकिन हमारे मेहमान चूँकि थोड़े देर से आए कुछ, तो अब मैं बड़ी नरमी के साथ, बड़ी नदामत के साथ, ये तहसील साहब की इजाज़त के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ जनाब अख्तर साहब को, क्योंकि वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं अपने अनंतनाग से। ये हमारे इसके जो हमारी एपेक्स कमेटी है उसके भी मेंबर हैं। तो जनाब अख्तर साहब, आप आइए और अपने ख्यालात से जनाब पहाड़ी कचरा सदर जनाब शरीफ बुखारी साहब, तहसीलदार टुकरनाग, बाकी मौजूद मेहमान कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ ये है कि जहाँ तक हमारा सवाल है, जहाँ तक हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया वो सब जानते हैं आप, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है यहाँ पे एक बात है कि आप कोई ये है नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं है आपका। डिसिप्लिन के बगैर है आप वही जकड़े जैसे कि पहले जकड़ हो रही थी। मुझे आपसे ये गुजारिश है कि हमने जो किया वो आपके लिए किया। हम चाह रहे हैं कि जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे यूथ हो, नौजवान हो, हम चाहते हैं कि वो एक आला तालीम हासिल करके एक बड़े ऑफिसर बने। हम आपके लिए एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ख्याल रखिए कि आप हमारा साथ दें। जिस तरह अभी सर बोल रहे थे कि आप लोग चाहते हो, हम लोग चाह रहे हैं कि ये कुछ करें, आप लोग चाहते हो नहीं करें, लेकिन वो सवाल नहीं है। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारा अनकरीब कुछ दिनों में 5-6 दिन के या 10 दिन के बाद एक प्रोग्राम होने जा रहा है अनंतनाग पे, जहाँ पे एलजी साहब तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम 500-600 आदमी यहाँ के वहाँ आना चाहिए। अगर आप आओगे ठीक है, फिर हम नहीं बोलना कि आपने हम नहीं बोला, होगी ये बात।
साहब ने रास्ता को काम नहीं कर रहा है, वो बोल ही नहीं रहा है कैसे आएंगे, इस वक्त पता ही नहीं है किसी को। देखो देखो एक चौकीदार है हमारा जिसने अभी बताया कि ऐसे बात होने वाली है। देखो 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 आप मेरी आपसे ये गुजारिश है कि यहाँ पे हमने जो बंदे रखे थे उन लोगों ने काम नहीं किया, वो आप लोगों का परेशानी है। आप लोग आज सारे 9 कमेंट तश्कील दो, ठीक है, वो आपके पास है। बाकी हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने जो किया वो आपने किया। हमारी रिजर्वेशन हो गई है, हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो रही है और इंशाल्लाह हमारी एसटी भी हो रही है। लेकिन आप काम करो, आपका ये जो प्रोग्राम है ये हमारी मीटिंग में ज़्यादा होते हैं। कल हमारी मीटिंग की, आप मीटिंग में आना, आप देखें इसके ज़्यादा होगी और भाषण इसमें होते हैं जिससे आप जो शोर नहीं करते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि मौजूद इंसान जहाँ बैठे हुए हैं, तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, या यहाँ की जो दीवार कमेटी बड़े सदर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे रशीद साहब बैठे हुए हैं, मलक साहब हैं हमारे, बहुत ज़्यादा हमारे लीडर हैं। लेकिन मुझे आपसे ये गुजारिश है कि आप एक डिसिप्लिन का नजर रखोगे तब आगे जाओगे। आज वो वक्त है ही नहीं उठाना। जैसा करके तहसीलदार साहब से मेरी गुजारिश है, ये जो आते हैं आपके पास बोलते हैं कि हमें रिजर्वेशन के लिए छापे दे दिए, 4% पहाड़ी छापे दे दिए, लेकिन ये हम यहाँ के जो लोग हैं इनको पता भी नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया है। इनको पता सिर्फ ऊपर से मनसबा उतराया है, ये मनसबा के लिए मनसबा जो नहीं उतरा है, ये हम लोगों ने मेहनत करके आपको दी है। इंशाअल्लाह जो हमारी जो अगली जो है वो हमारे फंड्स आएंगे, ट्राइबल फंड्स हमारी आएगी, वो भी आपके खाते में डालने वाले हैं। हमारी जो एसटी स्टेटस जो होने वाला है, अनक्रीव होने वाला है, वो आपको देंगे हम। या जैसे करके हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी ये मखसूस रहे पहाड़ियों के लिए, हमारे एमएलए बने, हमारे मिनिस्टर बने, ये हम चाह रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने लोगों को मुतहद रखें, मुतहद करो, अपने बच्चों को एजुकेशन दो, ये सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की। दूसरी बात है कि जो अपने जो ये बुजुर्ग हैं इनके लिए जो भी हमारे तहसीलदार साहब को पता होगा, ये जानते हैं, इनके को फार्म भी भर रहे हैं, वो ओल्ड एज फार्म भी भर रहे हैं, कोई माँ विडो होती है उसके फार्म भरो, उनको भी वहाँ से मिलता है, पैसा मिलता है वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से। तो इंशाअल्लाह अब मुझे ज़्यादा कहना है कि हमारे मिश्रा भी यहाँ तशरीफ फरमा आगे। मेरा ये कहना है कि हमारा अनकरीब 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद हम कल जम्मू जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम है, एलजी से बुला रहे हैं हम खाना बल में, कम से कम यहाँ के 500 आगे हो चुके प्रोग्राम कि एलजी से प्रोग्राम आज भी मकसूद आ रहे हैं। मुझे आपकी गाड़ी मुझे जम्मू से फ़ोन आया कि आप 2 दिन के बाद आ जाओ, 2 दिन में आ जाओ जम्मू, एलजी साहब आपको बुला रहे हैं, एलजी साहब के साथ बात करो। बाकी बहुत शुक्रिया आपका कि हम यहाँ भी आए। बाकी हमारे रशीद साहब हैं, ये बहुत तरह लीडर हमारे हैं, ये हमारे वो हाजी शेरवा मलक साहब बहुत तरह लीडर हैं। इन्होंने हमें सिखाया था कि कैसा चलना है, क्या करना है। लेकिन आज ये बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन जब मिसाल जलाएगी इसको छोड़ेंगे नहीं। जब हमारे हाथ में मिसाल है, कल आपके हाथ में मिसाल होगी। तो एक काम करो, और हमारा मसला ये है, हमारा मसला ये है, बात सुनो, देखो मुझे पता है मुझे, नहीं मुझे पता है क्या बोलते हैं आप। आपके बच्चे का जो काम किया आपके बच्चे का एडमिशन, आपके बच्चे का एडमिशन चुप करो, गाँव बसमाना उनको जहन मैंने होशियार किया, ये सोए हुए थे, तब देखो मैंने होशियार किया। आप ये बोलते हैं ये करता है वो करता है, मैंने इनको होशियार किया, ये सोए हुए को मैंने आपके बच्चे का एडमिशन मैंने किया हॉस्टल में, क्या बोलते हैं मुझे बोलते हो, चुप करो। मैंने आपके बच्चे का एडमिशन मेरे हॉस्टल में किया है, पहाड़ी हॉस्टल में मैंने एडमिशन किया है, आप मसला ये है कि ये जो बातें सैटरडे को इशू करेगा, ये बातें होती है यहाँ पे नहीं होती है, ये बात गाँव में लोगों जमा करो, इत्तेहाद बनाओ, ना मसला नहीं है। बाकी अभी रुको, अभी देखेंगे ना क्या बोलेंगे, अच्छा चलो, आपने ये जनाब अख्तर साहब, सुनो जी, ये जनाब अख्तर साहब आए थे,
इन्होंने एक नई बात बताई है। मैं गुजारिश करता हूँ इसको कि अगर इसको कहीं अपना कोई ग्रीवेंस है वो जाके वो पूछा जाके तहसीलदार साहब के सामने रखे, कौन सी प्रॉब्लम है वो हल करे, इधर डिस्टर्ब ना करे। ये मफाद परस्त लोग होते हैं जो कि आके यहाँ के इन्होंने हमेशा यही किया हुआ है। मैं अब ये अख्तर साहब ने नई हमको इंफॉर्मेशन दी है, ये आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अन करीब अगले हफ्ते में हमारा गवर्नर साहब हमारे गाँव पे ऐसे ही हमारे वो फंक्शन में आएंगे। क्या ये आप लोग वहाँ भी यही करेंगे? ये हमारा बेटा है, ये आप मतलब इस वक्त ये समझते हो कि तहसीलदार साहब आ गया, ये मेहमान खुशूसी हैं, इसके सामने ये कर रहे हो। क्या आप कल गवर्नर के साथ जब आएंगे वहाँ भी आपका रवैया ये होगा? ये मैं इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और यहाँ के जो तहसील बॉडी है उसकी भी मजम्मत कर रहा हूँ कि ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैं मुख्तसर में आप ये कहना चाहता हूँ, हमारे बशीर साहब आए हैं, ये बड़े दूर से आए हैं, पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं। मैं बशीर साहब से दावा करता हूँ कि बशीर साहब का ख्याल रखें यहाँ और ये कि जो गवर्नर का प्रोग्राम होगा ये बशीर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, रफ़ीक़ों, नौजवान साथियों, मासूम बच्चों, प्यारी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र इनायत, अगरचे हम कम हैं लेकिन कम भी नहीं, किसी से कम नहीं। बात यहाँ पर वायदे में आपसे मुलाकात हुई और ज़्यादातर शुक्रगुजार इस स्कूल की खाजा नंबरान की है, उस्ताद करामों की है, जिन्होंने भी अपना वक्त निकाल कर आपको यहाँ स्टेज बनाने के लिए मौका फराहम किया। बात सुनने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी हमें ये पता नहीं पहाड़ी है कौन और पहाड़ी ट्राइब किससे कहते हैं, ये कौन से ट्राइबल लोग हैं। हम लगे हुए हैं अनापन में, अगर बुरा न मानो। कहते हैं इंसान की एक ज़मीर जिंदा होना चाहिए, एक मुसलमान की ज़मीर जिंदा होनी चाहिए, उसकी किसी की बड़ाई या किसी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान के दिल में खुलूस होगा, नियत सही होगा, तो प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमा अमालु बिन्नियात, सारा दारमदार इंसान की नीयत पर है, खुलूस पर है। अगर आपके दिल में कौम का जज्बा है तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई फलानी लीडर है, फलानी देव कमेटी का सदर है, सेक्रेटरी करना, इसमें रखा क्या है। हर एक आप सदर हो, हर एक आप सेक्रेटरी हो, हर एक आप खजानची हो, हर एक दूसरे से बाला और आला हो, क्योंकि आप इस कौम के साथ जुड़े हुए हो। अगर आपको अपनी कौम की फिक्र है तो कोई कुछ भी कहे कुछ नहीं होगा, अपनी नीयत से आपको मंजूरी मिलेगी। अगर आपके दिल के अंदर खुलूस है, उस खुलूस से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। आपको लीडर बनाने से, आपको ओहदा देने से कोई मसले हल नहीं होते हैं। ये वक्त की जरूरत होती है सिस्टम को चलाने के लिए। हाँ भाई, ये फलानी देव कमेटी का मेंबर है सिस्टम चलाने के लिए, वरना उसको न कोई तनख्वाह है, न कोई भाई ऐसी कोई अथॉरिटी उसके पास है कि आपके लिए कुछ करके देगा। नहीं, ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए है। यहाँ पर तो शरीफ साहब ने ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, हमने कहा काफी लोग होंगे, हकीकत है, क्योंकि आपका कसूर नहीं, कसूर हमारा है। हमें ये इल्म ही नहीं है। हमने वजीफे लिए चंद दिनों से, ये पता नहीं वजीफे कहाँ से आए, स्कॉलरशिप। आज हमें 4% मिलेंगे, हमें पता नहीं है कहाँ से आए 4%। हम है कौन लोग, हमें ये भी पता नहीं है कि हम है क्या, हमारा मकसद जिंदगी क्या है। गोया हमें दुनिया में रहकर हमें कुछ करना है कि ऐसी जिंदगी गुजारनी है। मैं हर जगह, हर मस्जिद, हर स्टेज पर बोलता हूँ, नौजवानों, बुजुर्ग को जिंदगी गुजारो मत, जिंदगी बनाओ। मेक योर लाइफ, जिंदगी बनाओ। जिंदगी बनाने का मकसद क्या, अपनी जिंदगी को सर्फ करो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में, अल्लाह की मखलूक की खिदमत में। फिर अपने कौम से पहले खुद से सोचिए, भाई अपने कौम के लिए आपने क्या किया है, कितनी कोशिश की थी, भाई इसकी फिक्र होनी चाहिए। ये नहीं है कौन है, किस तरीके से है, क्या आया। ये तो ये आपका जो दिन आज जो 15 दिसंबर का, नवंबर का दिन है, इस दिन के साथ अभी कोई हमें वाबस्तगी है ही नहीं।
क्योंकि ये ट्राइबल जो मनाने जा रहे हैं सेंट्रल में हिंदुस्तान में जो मनाने जा रहे हैं ये उन लोगों की याद में है जिनको आज आप लोग खबर में सुनोगे किसको इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन एक उम्मीद लेकर हम भी इस फील्ड पर उतरे हैं कि आज ट्राइबल डे है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि अनकरीब पहाड़ी कबीले को भी ट्राइबल करार देकर एसटी की मुराद से नवाजा जाएगा। इस उम्मीद से यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि अभी हमें एसटी का जो मुराद जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो मिला नहीं है। ये तो मामूली 4%, ये कुछ बड़ी चीज नहीं कि 4% कहां से काटा कहां दिया इस कौम को, यानी मामूली। लेकिन अब ये जो मसला है, असली मकसद मुद्दा जो हमारी जिंदगी का है वो ये है मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, अजीजों, रफीकों, हमारा उठना बैठना रहन सहन जो है ये तो उन लोगों में से हम रह रहे थे जब से 1957 में जब क्रिएशन हुई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, उस वक्त जिन जिन कबीलों को बैकवर्ड करार दिया गया उस कबीले में हम लोग भी थे। यानी कि अगर बुजुर्ग बकरवालों को बैकवर्ड करार दिया गया उसमें हम लोग थे। किस तरीके से हम लोग थे? वैली ऑफ कश्मीर जो बुक लिखी गई, लाहौर से लिखी है बुक, उसके पेज नंबर 316 पर लिखा हुआ है जितने भी बारहवीं कश्मीर में रह रहे तमामों को गुजर कहकर पुकारा गया है, गुजर कहकर इनकी शनाख्त हुई, गुजर कहकर इनकी पॉपुलेशन को काउंट किया गया है। वहां ये फर्क नहीं था कि पहाड़ी कौन है गुजर कौन है। भाई बकरवाल तो पेशा है, वो भी यही लोग हमारे दरमियान में है, हमारे ही लोग, हम उनसे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन सबों को एक ही मालवे पर होदा गया था। फिर जब उनको एसटी के मुराद से नवाजा गया, बैकवर्ड में निकाल रहे थे एसटी में उन्होंने कुछ कास्टों को लिया। मैं आपको याद दिलाने लगता भाई इसके बारे में सोचो, कुछ कास्ट कुछ उन्होंने दिखाए भाई कि ये कास्ट हमारे कबीले में आ रहे हैं। जब उन कास्ट को उठाया वहां पर जहां पहाड़ी लोगों की भाई कास्ट थी उनको उन्होंने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया इस पर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, यूं ही ये 4% नहीं मिले। मेहनत किस तरीके से? इन्होंने कहा भाई कि अब जो हम रह रहे हैं ना हम वहां के रहे ना यहाँ के रहे, हालांकि इन्हीं लोगों के आगोश में रह रहे हैं, इन्हीं लोगों के साथ काउंट हुए हैं। अगर उस लार्ज में भी हम इनके साथ शुमार हुए थे। फिर यहाँ उसके बाद लेटेस्ट में 86 में एक सर्वे हुई है, उस सर्वे अपनी ग्रुप का सर्वे हुई है, वो कश्मीर से बाहर जितने भी लोग और कबीले के लोग रहे हैं जो ट्राइबल है उनकी सर्वे हुई है। उस सर्वे में भी हमारा काउंटिंग जो हुई है वो भी एज ए बुजुर्ग कहकर हमें भी काउंट किया गया है, कोई अलग शनाख्त नहीं थी। इस फिक्र ने हमारे बुजुर्गों को एक एहसास दिया, जैसे कि उस वक्त के एनसी के माने हुए लीडर थे सईद मसूदी, अल्लाह ताला को गनी की रहमत करे, किस तरह बोल सकते हैं। उसने कहा ये सरासर इंसाफ ही है, एक भाई को एसटी के जुमले में ला गया, इस भाई को तमाम मुराद मिल रही है, दूसरा भाई नामारूम ने उसने जब खोज किया कि भाई जितने भी बाकी पारमी उनको कहते जो पार से आए हुए ट्राइबल लोग हैं, पारमी जितने भी थे, चाहे इसमें हिंदू बोलने जिसको हम पहाड़ी बोलते हिंदू बोलने वाले थे, पटवारी बोलने वाले थे, और करनाई, कुंची, रजौरी, पश्तू, कुस्तानी कई जबानें थी। ये पारमी लोगों ने कहा इनको एक ही प्लेटफार्म खड़ा करके उसने इसको शनाख्त दी थी, एक वजूद दी थी कि ये पहाड़ी कौम है, ये पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं, इनमें ये लोग आ रहे हैं। ये तहरीक शुरू हुई, अल्लाह का करना था, वक्तन फौकत जिसने भी पहल किया, जो भी आया, अदना था आला था, हम इस मुकाम पर पहुंच गए कि काफी जद्दोजहद के बाद कुछ भी हमसे जब न हो सका। हकीकत है इस मौजूदा दौर में क्या कहा कि 4% आपको मिला, 4% एक बार अल्लाह का देन था, काफी सहूलियत मिली क्योंकि हम बैकवर्ड के जुमरे में आ गए। पहले बैकवर्ड के जुमरे भी नहीं थे, लेकिन नहीं है भाई अब इसकी इतना नहीं कि 4% मिला, अब हमें अपना वजूद जो है इस वजूद को सामने लाना है, खासकर नौजवानों को सामने लाना है। अब तारीख को गिनोगे मेरे दोस्तों बुजुर्ग, यहाँ 3 हस्तियां गुजरी थी आपकी कश्मीर की सरजमीन पर। मलम जान की जब लेके गुलाम रसूल शाह अलमारूफ नांगाबाजी, भाई नांगाबाजी की जबान पहाड़ी थी, नांगाबाजी की जबान पश्तू थी, 2 बीवियां थी, एक बीवी जनाब पश्तू पठान कम्युनिटी से ली थी तो जबान पश्तू किया करते थे, दूसरी भी उनकी की थी पहाड़ी बोला करते थे, लेकिन कोई फर्क कोई नहीं। हमारे जितने भी इस कबीले से वाबस्ता है उसके पैरोकार है, उसको अपना पीर मुर्शिद मानकर चल रहे थे आज तक। लीजिए यहाँ पर मैं तारीख के औराद मिलता हूँ, यहाँ एक और हस्ती की 3 की मैंने तस्करा किया, यहाँ एक और हस्ती जनाब वान सिंह की जो हस्ती बड़ी मिली है बाबा जी लारवी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा उनकी जब देखो कि जब उन्होंने पन्नामा लिखा अपने कलम से, जो इन्होंने पन्नामा लिखा था हिंदू जबान में जिसको पहाड़ी व जबान हम कहा करते थे आजकल, उसमें जब लिखा जब गुजर बकरवालों को कल्चर एकेडमी में जब शोभा मिला सबसे पहले उस पन्नामे को उठाकर उसकी किताबची की शक्ल बनी और उन्होंने कहा कि ये हमारी, अब उन्होंने अपनी पहचान बनाई कि हमारी पहचान जबान है।
गुजरी जबान, लेकिन जो ट्राइब उनको मिला वो जबान पर नहीं मिला है, वो कबीले को मिला है, वो उस लोगों को मिला है, उसमें कहीं कास्ट आ रहे हैं, चाहे वहां जबान की बात नहीं है, लेकिन उसकी बुनियादी जो जबान थी, जो उनका पन्नामा था, वो आपकी हिंदू जबान में है। और जो इस वक्त कल्चर अकेडमी में सबसे पहले जब इनको दिया गया शोभा, उसमें वही किताब चाहे, उस पर इंदिरा गांधी का फोटो भी लगा हुआ है, उसको उस वक्त की वजीर आजम को खुश करने के लिए। मेरे दोस्तों, रही यहाँ पर दो हस्तियां जिन्होंने ट्राइबल वहां से आए हुए थे, कोई गैर वाकिफ नहीं है, बुजुर्ग जानते होंगे, यहाँ कुतनी बाग गांधरबल की सरजमीन एक और हस्ती मीरा नकशबंदी रहमतुल्लाह, जो भी वो भी ट्राइबल कबीले से, जब इनकी और मियां साहब की आपस में जो ताल्लुकात थे, मियां नजीमुद्दीन लालवी जो थे, अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत करे, मेरे दोस्तों, उसकी घरवाली जो थी उसको मीरा नकशबंदी ने बहन कहा था, यानी बहन। जब वो वहां जाया करते थे तो पीर साहब के साथ निजामुद्दीन लालवी के साथ नहीं देखा करते थे, निजामुद्दीन लालवी से कहा था भाई कि जाओ अपने बहन से मिलो पहले, क्योंकि प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बहन के पास जब जाओगे, खुलूस से जाओ, मोहब्बत से जाओ, कुछ लेकर जाओ, तोहफे लेकर जाओ, ये प्यारे शफकत का बहुत बड़ा सच्ची बड़ा मौजू है। तो जाया करते थे, यानी कैसे मीठे ताल्लुकात थे उन लोगों के और हमारे पहाड़ी लोगों के दरमियान में। और जब निजामुद्दीन लालवी रहमतुल्लाह यहाँ से रुखसत हुए, मेरे दोस्तों, मियां बशीर कोई खैर बात, कोई तारुफ के मुहताज नहीं है, हर एक जानता है। जब वो आए फिर पहुंचे इसके पास, उसको मामा कहा करते थे कि मामा, क्योंकि वक्त बड़े हस्ती थे, मामा अब तो वालिद साहब की साहिब कर छूट गया, अब मैं क्या करूं, मैंने सियासत में कदम रखा है। कहा क्या, किस चीज की कमी आप महसूस कर रहे हो? कहा मुझे वो थोड़ा बहुत तरबियत। तो फिर इस वक्त मीरा नकशबंदी रहमतुल्लाह ने उसके हमरा, उसका भाई भी था कि आप कलम का लाओ और मैं आपको तरबियत सिखाता हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरीके से इस जो आपका जिस पर बैठे हुए हो उसको किस तरह आगे ले जाना है। जैसे आज उसमें आपने वो जिम्मेदारी जो ही मेरे दोस्तों बुजुर्ग यहाँ का आपके जिम्मे छोड़ दी, ये सिर्फ, लेकिन मेरा मकसद बना है कि ये लोग जो थे, जब एक को देखते थे हम एक ही लोग थे, दुनियाई मकसद मुदा के लिए हम बिखर गए, हम डिवाइड हो गए हैं। लेकिन इस डिवाइड होने से अब सोच रहे कि भाई आज तक जो भी हुआ सो हुआ, अब हमें इत्तेफाक की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, अपने पहचान को पैदा करने की जरूरत है। जब भी कोई आवाज हो, जब एक होकर आगे चलोगे, वो वक्त दूर नहीं, इस कौम को एसटी के जुमरे में लाया जाएगा, अनकरीब लाया जाएगा। जिन्होंने हमें 4% दिया है, हमने बार उनका शुक्रिया अदा किया है, और आज इस उम्मीद से हम जी रहे हैं, इसी उम्मीद से यहाँ जमा हुए। शरीफ साहब ने कहा कि आप अब यहाँ पर आए क्योंकि इस दिन की याद में हम इसलिए जमा, मैंने पहले आपसे कहा था कि एक उम्मीद वाबस्ता है कि यही इंशाल्लाह वक्त करीब है, बात हो रही है। हमारे जो कायद है, हमारे जो बुजुर्ग है, हर तरीके से लगे हुए हैं कि भाई इस फर्क को खत्म किया जाए। जिस तरीके से गुजर बकरवालों को एसटी के जुमरे में ला गया है, उनको ट्राइब करार दिया गया है, इसी तरह पहाड़ियों को ट्राइब करार देकर इनको भी एसटी के जुमरे में लाया जाए। यही हमारा डिमांड है। न हम किसी सियासी फार्म पर खड़े हैं, न हमें किसी सियासी पार्टी के से वाबस्ता है। हम हर जगह पहुंचे जहां पर हमारे कौम की कोई बात हो, जहां पर हमारी कौम को कोई फायदा मिले, ताकि हमारे कौम में जो आज तक इंसाफ नाइंसाफी हो रही है, वरना आम लोग हमें कहा करते थे, जितने भी आम यानी कश्मीरी हमारे भाई है और भाई सब कहते भाई पहाड़ी में नहीं जानते पहाड़ी क्या है, जबान क्या है, तो ये गुजमा के गुजर हिमा गई। अगर जहां सामने आ जाओगे दास्त मालूम नहीं है, जब आप अपने कश्मीरी भाई से मिलोगे, सामने आकर बात करोगे तो अदब एहतराम से करेगा, लेकिन अगर उसका साथी दूसरा आएगा, ये तो हंसी से कर या हंसू से फॉलो जाए, उसको गुजर हंस फॉलो उस वक्त हम, लेकिन हम नहीं, वो हमारे भाई, हम उनके आगोश में रह रहे हैं। हम भी यही सिद्धा करते गौर में बार बार कहता हूँ, इस फर्क को खत्म किया जाए। जिस तरीके उनको शेड्यूल ट्राइब मिला है, इस तरह पहाड़ी कबीले को भी शेड्यूल ट्राइब करार देकर उनको शेड्यूल ट्राइब के मुराद से भी नवाजा जाए। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मुद्दा है। जैसे आपको कह रहा था, हमारी कोशिश है, अख्तर साहब ने बात सुनी, ये हमारी कोशिश है। अगर यही हालत हुई, अगर ऐसे ही आप रहोगे, तो फिर हमें जरूरत नहीं उन लोगों को दावत देने की, क्योंकि अगर हम दावत देंगे, अगर हम किसी से रास्ते में रखेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ रास्ते में नहीं, सियासी पार्टी के साथ हम कौन की मफाद में हैं। अगर ऐसे एलजी को हम दावत देंगे कि आप पहाड़ियों के दरमियान आकर इन पहाड़ियों की आहुजारी, इनकी फरियाद दर्ज कर, इनकी फरियाद सुनो, लेकिन जब पहाड़ी वहां होंगे नहीं, जब पहाड़ी वहां आएंगे नहीं, खुदारा बताओ तो हमारे लीडर वो करेंगे क्या? इनके पास है क्या? रिस्पाई की सौ तो कुछ नहीं मिलेगा ना।
इसी चीज ने हमें फिक्र में डाला है। यही हमारी कोशिश है। हम यहाँ आ जाए, अगर आपके नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें कौम के लिए एक दिन सर्व करने के लिए तैयार है, तो हम इस स्टेज यहाँ ही शुरू करेंगे इस कोशिश को, यहाँ ही शुरुआत करके देखेंगे भाई इस इलाके से कितने लोग आने वाले हैं, फलानी इलाके से कितने लोग आने वाले हैं। अगर ये लोग हमें साथ देंगे, हमारी कौम हमें साथ देगी, नौजवान हमें साथ देगी, तो वो वक्त दूर नहीं कि करीब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम उनसे अपॉइंट लेने वाले हैं, हम उनसे डेट मुकर्रर करेंगे और आप लोगों के दरमियान लाएंगे, चाहे वो अनंतनाग की ज्यादा बेहतर रहेगा सेंटर में, ताकि हम अपनी फरियाद तो सुनाए। तो बड़ी चीज ये है, एक शनाख्त पैदा हो जाएगी कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस कोकरनाग में, इस इलाके में, शांगस में, पहलगा में, यानी डिस्ट्रिक्ट से जो वाबस्ता है, कितने पहाड़ी ले रहे हैं, जैसे अब 1.25 लाख की पहाड़ी गिनती को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कम से कम 1.25 लाख जमा ना हो सके तो कहीं 1000 तो जमा होने चाहिए ना। 1000, 3000, 4000 तो कोई बात नहीं। अगर खुदा न खास्ता आप उसके लिए भी तैयार नहीं हो, फिर बेहतर है कि जिस स्टेज पर हम हैं अपनी कोशिश के मुताबिक हम कोशिश करते रहेंगे और उनको फिर दावत देने की हम जहमत न करेंगे। साहब, ये तब हो सकता है उनके लिए दावत देने के लिए प्रोग्राम जब आप लोग हमें साथ दोगे। जैसे आज यही मैं चाहता हूँ नौजवानों से खासकर, अगर आपका जज्बा है तो मैंने कहा सब कुछ छोड़ दो, दैट कमेटी सदर की सुदूर की छोड़ दो, सेक्रेटरी की छोड़ दो, बाहर से थे एक पहाड़ी, बाहर से थे एक प्यारे आकर सुन्नत उम्मती, एक जज्बा लेकर इस कौम के लिए मैं एक वक्त, एक दिन, 10 दिन, 20 दिन खर्च करूंगा किराए के तौर पर, न कि किसी डोनेशन के लिहाज से नहीं, दिन भी दूंगा ताकि हमें, उनको जरूरत है। आपको ये सियासी परेड पार में उनको होती है, उनको जरूरत है जब हम लोग जमा हो जाएंगे वैसे उनके मुंह से कोई बात निकलेगी, अच्छी बात निकलेगी, डेवलपमेंट की बात निकलेगी और मुमकिन के इस सिफारिशात जो है वो भी आगे पहुंचाने में अपना पहल करेंगे। ये तब मुमकिन है अगर आप लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हो। आज की जिंदगी आपका वक्त हमने लिया, शरीफ साहब ने कहा कि आप आओ, हमने तारुफ करवाई, आपके दरमियान आ गए, यही में लेकर इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये इनकी तमन्ना थी, थोड़ा सा मीटिंग भी हो जाएगी, मशवरा भी हो जाएगी और अपने साथियों से मिल गए। अब अगर कहने में कुछ ज्यादती हुई होगी उसके लिए माजरत ख्वाह है और अल्लाह ताला हमें इत्तिफाक इत्तेहाद से दौलत से नवाजे और अल्लाह ताला हमें एक और एक बना दे, नेक और एक बना दे। आमीन और सुमा आमीन। ये थे हमारे बशीर साहब, मास्टर बशीर साहब। इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी है ये आपको मैं ऐसे, और मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। इसने पूरी अपनी ज़िंदगी, अपनी नौकरी, अपना जो कुछ माल मता उस तज़ीम के लिए वक़्फ़ कर दिया। ये बशीर साहब आपके सामने जो बात बहुत बता रहे थे ये हरफ बहरफ सही है। हम इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, अगर हमने इस वक्त कुछ न किया तो मानो ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट, यानी हमारा ग्राफ यहाँ से नीचे फिर गिर जाएगा। यानी हमने एक पहाड़ी चढ़कर कहीं पहुँचे हैं इस वक्त, अगर हमने इत्तेहाद और इत्तिफाक कायम न किया तो याद रखो कि हम पछताएंगे। वो इकबाल का एक शेर है कि वो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बोला था, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहाड़ियों, अगर तुम आज भी नहीं जागोगे तो वो कहते हैं ना कि आपका नामो निशान नहीं रहेगा, आपकी कहानी तक भी नहीं रहेगी। तो ये इसलिए मैं लास्ट पे ये कहता हूँ, हम इंशाअल्लाह और रहमान हम ये इसको अब कंक्लूड करते हैं इस महफिल को। मैं अपनी तरफ से सारे मेहमानान जो इतनी दूर से तशरीफ लाए उनका और आपका, और खासकर जनाब सईद मुईज़ साहब तहसीलदार कोकरनाग, आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि सैयद खानदान क्या होता है। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आल है उसमें कितनी नदामत होती है। इतनी बड़ी चेयर पे होके और मुझ नाचीज के कहने पे ये आए, इसके कदम वहाँ से जो इधर तक पहुँचे उठे, इनका जज़ा अल्लाह ताला इनको देगा, हम नहीं दे सकते। तो इसी नोट पे मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ फर्दन कि आप यहाँ आए
آپ نے تشریف لائی اور ہمارا جو آج کا مقصد جو تھا لاسٹ میں یہ سمجھ لو ہمارا یہاں کوئی اور دوسرا مقصد جمع ہونے کا نہیں تھا، نہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم تھا، نہ کوئی تقریر تھی، خالصاً ہمارا یہ مقصد آج تھا کہ آج 15 نومبر ہے اور 15 نومبر کو نیشنل ٹرائبل پرائڈ ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں۔ وہ اس چیز کی منظوری اسی سال ہمارے گورنمنٹ نے، جو ہماری سینٹرل میں گورنمنٹ ہے، اس نے دی۔ پہلے بھی یہ تھا، ٹرائبل جو برسا منڈا جو تھے اس کا بھی منایا تو مطلب تھا تو، لیکن آفیشلی نہیں منایا جاتا تھا۔ آج یہ آفیشلی منایا بھی جا رہا ہے تھرو آؤٹ ہندوستان، پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے۔ اور اس موقع پہ ہماری یہی ڈیمانڈ رہے گی گورنمنٹ سے کہ ہم بھی ایک ٹرائب، اگر آپ کہتے ہو ٹرائب تو ٹرائب ہمارے بھی ہے، جو بھی ٹرائبل کے لیے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری ہم پر ہیں، فٹ ہے۔ ہمارا کیس آج تک جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں پچھلے 30-40 سال سے، چاہے وہ پاپولر گورنمنٹ ہو، چاہے وہ گورنر ہو، گورنر کی حکومت، گورنر راج ہو، ان گورنر نے بھی یہ ہمارا ریکمنڈ کیا ہے، پاپولر گورنمنٹس نے بھی ہماری یہ ریکمنڈ کی ہے، اس کی سفارش کی ہے کہ ہم کو ایس ٹی کا درجہ ملنا چاہیے۔ ہم مشکور ہیں اس گورنمنٹ کا، انہوں نے ہمیں 4% بھی دیے ہمارے لیے۔ جو ٹرائبل ڈے ہے اس کا بھی اناؤنسمنٹ کی، اور انشاءاللہ الرحمن انہوں نے وعدہ کیا ہے اسٹیج سے، اپنے جو ہوم منسٹر آئے تھے، کہ ہم کو انشاءاللہ الرحمن ایس ٹی کا درجہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری لاسٹ میں یہ گزارش ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ اننت ناگ کو اگنور نہ کیا جائے، ہمارے جو بھی ریزرویشن ہوگی، ہماری اچھی خاصی یہاں جو پاپولیشن ہے ڈسٹرکٹ اننت ناگ کی، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام صاحبان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم ایک فوٹو سیشن کریں گے، اس کے بعد جناب تحصیلدار صاحب اور جو مہمان آئے ہیں ان کے لیے ہم نے تھوڑا سا چائے کا ایک کپ رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ غریب علاقہ ہے، غربت ہے، پچھڑا علاقہ ہے۔ ہاں، آپ کو جو ہونا چاہیے تھا آپ کے لیے وہ نہیں، تو تھوڑا سا چائے کا ایک کپ ہمیں رکھا ہے، وہ ہم ان کا چائے کا کپ ہم ہمارے ساتھ پیئیں گے۔ تو صرف ایک بات میں گزارش کروں گا کہ ہم ایک فوٹو سیشن کریں گے، وہ جو ہم یادداشت کے لیے رکھیں گے۔ تو باقی دوسری بات، اہم بات جو میں نے ابھی اختر صاحب آئے کہ یہ میسیج آئی ہے ہمارے پاس، یہ غور سے سنو۔ گورنر صاحب ہماری ہی ڈیمانڈ پہ ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا ادھر، ان سے ملا جا کر ان سے اپائنٹمنٹ لی ہے، وہ ڈیٹ اب آج یا کل ہم کو مل جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس دن ہم کوشش کریں گے، یہ ہمارے اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں یہ نہیں کہ میں کہوں گا جی میں آپ کو گاڑیاں بھیجوں گا، وہ پولیٹیکل ہوتی ہے، ان کے بیک وہ ان کے پیچھے جو ہے کارپوریٹ کپلے سسٹم کے جو بڑے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ان کو وہ پیسے دیتے ہیں، وہ کل کو ان کو فائدہ ملتا ہے، وہ کل ان کو جا کے ان کی مدد جو بھی ہوتے ہیں مراد وہ پوری کرتے ہیں، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز، وہ آپ کو گاڑیاں بھیجتے ہیں، یہ لو جی 10 گاڑیاں آ جاؤ جلسہ ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، یہاں جو بھی لوگ آئے ہیں اپنی جیب سے 10 روپے خرچ کر کے آئے ہیں، یہاں کسی کو کوئی ملتا نہیں ہے، یہ اپنی لڑائی ہم نے خود لڑنی ہے۔ ہمارے اگر کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہوگی ہم کو بھی مالا مال کر دیا جائے گا، ہمیں بھی ٹیلی فون آتے ہیں، ہمارا شیئر آپ ہمارا اسٹیج شیئر کرو، آپ کو ہم اتنا پیسہ دیں گے، آپ کو یہ کریں گے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ ہم نے ٹھکرا دیا ہے۔ ہم اپنی قوم کے لیے کوئی سودا بازی اس کا میں آپ سب کے سامنے خدا حاضر ناظر جان کر یہ اس وقت وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اگر مجھے کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ میں کہتا ہوں دنیا بھر کی دولت میرے قدموں میں بچھا دی جائے، انشاءاللہ الرحمن ہماری یہ جو ٹیم ہے یہ بکنے والی نہیں ہے۔
इंशाअल्लाह रहमान। और हमने जो ये आपने किया है अपने बलबूते हुए करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर यहाँ 50 आदमी हैं, ये मेरी बात और आप 10-10 को पहुँचाओगे, 500 आदमी के पास पहुँचाओ कि हमें अपने लिए निकलना है, अपने लिए काम का एक दिन निकालना है, तो उस दिन आप वहाँ आओगे। 10 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ आपकी जो दही कमेटी है, ये यहाँ की जो तहसील कमेटी है, दही कमेटी है, वो आपको प्रोग्राम दे देगी। और इंशाअल्लाह जो भी इनके ये बुजुर्ग हमारे हैं, मेरा भाई है, छोटा भाई है या बड़ा भाई होगा, कोई है, इसके जो भी रिलेशनशिप में है, हम ताबेदार हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर इनको दे देना या मैं इनको दे दूंगा अभी। इसकी जो शिकायत होगी वो हम सुनेंगे, अगर हम नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। तो इंशाअल्लाह इत्तेहाद रखो, इत्तिफाक करो, और जब ये हमारी ये कॉल आएगी वो वहाँ आना होगा। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा ये नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सब साहिबान का मशकूर हूँ। बाकी वो